इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायसिंग टेक्निक्स फॉर कॉमन सोर्स कोड। स्टोरी ये है कि हमारे पास इस सर्किट में जो कॉमन सोर्स का सर्किट है इसमें हमारे पास दो सप्लाई वोल्टेजेस हैं, एक है VDD और एक है हमारे पास V नॉट। ना प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे सर्किट में सिर्फ एक सप्लाई वोल्टेज हो, लेट्स जस्ट से VDD, और V नॉट जो हमारे पास बायसिंग वोल्टेज है इस मॉसफेट के लिए ये हम V नॉट VDD से जनरेट कर लें। इसका जो वन ऑफ द सिंपलेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि हम लोग VDD से V नॉट बना लें यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर। लेट्स जस्ट सी वो कैसे होगा। इसमें ये हमारे पास कि लेट्स जैसे कि हमारा ये मॉसफेट है एंड वी वांट, एंड यहाँ पर हमारी डिमांड है कि हमें V0 मिल जाए, और यहाँ हमारे पास लगी हुई है रेल VDD की। तो अगर हम यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर लगा दें यहाँ पे, लेट्स जैसे ये R1 है, लेट्स जैसे ये R2 है, तो हमारे पास जो इस पॉइंट पे वोल्टेज आएगी वो V नॉट होगी, और वो वोल्टेज हो जाएगी V नॉट R2 ओवर R1 प्लस R2 times VDD. So by looking the proper values for R1 and R2, we can set whatever V naught we want from the VDD. बाकी जो सर्किट है वो वैसा ही रहेगा। So यहाँ पर हमने जो रेजिस्टिव डिवाइडर यूज़ किया है to generate V naught using VDD, इसके इस्तेमाल करने से एक नेचुरल क्वेश्चन होता है रेज कि क्या इस रेजिस्टिव डिवाइडर से कॉमन सोर्स की इनपुट इम्पीडेंस पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं। दैट इज़ के will this resistive divider going to affect Rin. Now let's just try to find the input impedance and see if it changes initially before। अगर हम पुराने सर्किट में देखें, जो कॉमन सोर्स कोड का सर्किट था ये वाला, इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस थी that was found out to be very large or infinity. Now that we have produced the V naught using the resistive divider, so we have to see if this resistive divider is going to affect the input impedance of the common source stage. So let's just try to find the input impedance for this common source core with resistive divider. To do that we have to short the supply voltage or the constant sources. Let's just do it. And we also have to apply a voltage, external voltage Vx from the input side, due to which a current Ix will flow. Now if you let me redraw this figure, I can redraw it like that, where we have the RD going to the ground, and then we have the source terminal going to the ground, and then we have the R2 going to the ground, and on this terminal we have R1, which is effectively also going to the ground. So we have R1 going to the ground, and then we have the supply voltage Vx and the current Ix. अगर हम इस सर्किट को गौर से देखें तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है that resembles with this circuit that I made in the start, और इसकी input impedance infinity थी, और so I can safely say कि इस लेग से आगे जो resistance है वो
infinity है. So now I can fairly easily find the input impedance, which was the ratio of Vx and Ix, which is now going to turn out to be R1 in parallel to R2, which is parallel to infinity, which is going to give us a result of R1 in parallel with R2. So now we have realized that using the voltage divider to bias the common source core, we have actually changed the input impedance from R in infinity to R in equal to R1 parallel with the R2. Question ये है कि is it good or bad? Let's just try to answer this question using an example. Again, we have a common source stage. We have the RD, and then input impedance जो कि पहले infinity थी, अब वो आ रही है हमारे पास R1 in parallel with R2. And now let's just connect the mic to the amplifier. और mic के लिए हम कोशिश करते हैं कि उसका कोई realistic model use कर लें. So I'm going to add this resistance, which is the resistance of the mic, in series with the mic itself. Or you can say the input signal is the mic. And let's just call this node as node X. तो हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग आउटपुट मुहैया कर रहे थे V out. अगर आप याद हो, आउटपुट जो है आप यहाँ पर सेंस करते हैं. So let's just presume that in this case lambda is 0, that there is no channel modulation. So our पास जो voltage gain है, that is given by V out over V in. Let's just use a chain rule here and say that this term is actually equal to V out over Vx times Vx over V in. Now this term is known to us. ये क्या है? ये Vx वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज है और V out यहाँ पर वोल्टेज है. इसका हमने फाइंड किया हुआ है वोल्टेज गेन, और वो जो नाम हमारे पास क्या आया था, इट वाज माइनस GM ये वोल्टेज क्या है? ये वोल्टेज हमारे पास Vx over V in है, and if we solve it properly we'll end up with R1 in parallel to R2 divided by resistance of the mic plus R1 in parallel to the R2. अगर आप में से कोई ऐसा बंदा परेशान हो रहा है कि ये टर्म किस तरह इसके इक्वल आई है, so let me just help you out. यहाँ पर जरा वोल्टेज फाइंड करें Vx, तो जनाब वो क्या हो जाएगी, Vx is going to be using voltage divider, it's going to be R1 in parallel to R2 divided by R mic plus R1 in parallel to R2 times the supply voltage which is V in. So इसको आप नीचे ले आएं इसके यहाँ पे, and then you'll have this term. So ये हमारे पास voltage gain आ रही थी common source course की, where we have used the voltage divider to generate V naught or the biasing voltage on the gate. अगर हम इसमें देखें कि जब हमारे पास हमने यूज़ नहीं किया था voltage divider to bias common source course, हमारे पास gain जो है GM minus GM RD आया था. So the use of voltage divider, ये एक extra term आ गई है which is going to attenuate your voltage gain.
क्वेश्चन ये है कि इस टर्म का इफेक्ट किस तरह रिड्यूस किया जाए। उसके लिए ये है कि अगर हम लोग इस टर्म को बड़ा बना दें काफ़ी इस टर्म से, so this term will go away and this term will cancel this term out and we'll have 1 over here. So and that will give us the voltage gain close to minus GMRD, जो हमारा वोल्टेज गेन था जब हमने वोल्टेज डिवाइडर यूज़ नहीं किया था। So what I'm saying is कि अगर हम R1 in parallel R2 को ऐसा चूज़ करें कि ये बहुत बड़ा हो R mic से, then we can approximate AV to be minus GMRD, जो कि हमारा वोल्टेज गेन था कॉमन सोर्स 4 का। अब यहाँ पे इस कंडीशन का मतलब क्या है? इस कंडीशन का मतलब ये है कि इंडिविजुअली R1 और R2 काफ़ी बड़े होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू R mic, बिकॉज अगर दोनों ये बड़े होंगे तभी इनका जो पैरेलल है कॉम्बिनेशन वो भी बड़ा होगा। सो आप प्रैक्टिस में देखेंगे या सर्किट्स में देखेंगे कि जो आपके पास ये जो सर्किट आपने लगाए हैं R1 और R2, इनकी वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी होंगी एज़ कम्पेयर टू जो आप यहाँ पे माइक लगाएंगे उसकी इनपुट रेजिस्टेंस से। तो ये हमारे पास कॉमन सोर्स कोर आती है वेयर वी हैव यूज्ड वोल्टेज डिवाइडर टू बायस द मॉसफेट। इसमें स्टिल एक प्रॉब्लम है। लेट्स जस्ट से कि मेरे पास एक लूप एंटेना है। लूप एंटेना जनाब कैसा होता है, ये मेरे पास एक फिगर है लूप एंटेना की, मैंने विकीपीडिया से लिया है। इसमें बस ये है कि एक एंटेना है या एक वायर है, एक रॉड है जिसको आपने लूप दे दिया है। इसके 2 टर्मिनल्स होंगे यहाँ पर जो कि आगे सर्किटरी में एंटर हो जाएंगे। तो लेट्स जस्ट से कि हमारे पास एक लूप एंटेना हम यहाँ पे करते हैं कनेक्ट। बाय द वे antenna is a device which converts, by the way antenna in general is a device which converts radio wave to electrical signals and vice versa. रेडियो वेव्स कौन सी वेव्स हैं? फॉर इंस्टेंस जो आपके मोबाइल को लिंक करती हैं लेट्स से टावर के साथ, वो लिंक जो है वो वायरलेस लिंक है, और जो वेव होती हैं यूज दोज आर कॉल्ड रेडियो वेव्स। सो नाउ वी हैव ए केस है जहाँ पे हमारे पास एक एंटेना है जो रेडियो वेव्स को रिसीव करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो जाए यूजिंग कॉमन सोर्स को। अगर तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट अवे लूप एंटेना लगा दिया तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो टर्मिनल है हम चाह रहे थे यहाँ पर वोल्टेज आए V0 जो कि NF हो इस डिवाइस को प्रॉपर बायस करने के लिए, लेकिन जो लूप एंटेना की दूसरी वायर है वो ग्राउंड हुई हुई है। देयरफॉर जो यहाँ पर वोल्टेज DC वोल्टेज नज़र आएगी वो हमें 0 वोल्ट नज़र आएगी, जो कि हम नहीं चाहते। सो नाउ वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन कि हमारा एम्पलीफायर भी काम करे और लूप एंटेना का जो सिग्नल है जो रेडियो वेव को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक सिग्नल, हम उसको एम्पलीफाई कर पाएँ। उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा हल ये है कि हम लोग राइट बिटवीन द लूप एंटेना एंड द एम्पलीफायर एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करा दें। कैपेसिटर करेगा क्या? ये कैपेसिटर इज गोइंग टू आइसोलेट द DC level of loop antenna and the circuit. So we introduce a capacitor that will isolate the DC levels of antenna and amplifier. यहाँ पे जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जो AC सिग्नल है एंटेना का वो इसमें से थ्रू हो जाए, लेकिन जो DC सिग्नल है
या डीसी लेवल जो है एंटेना का वो आइसोलेट रहा है इस सर्किट से। यहाँ पे अगर कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि जो मैंने लास्ट बात की इसका मतलब क्या है, तो उसमें ये है कि हमारे पास इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर होती है 1/2 पाई एफ सी। नाउ अगर ये f इक्वल टू वेल अगर ये f छोटा हो, लेट्स जस्ट से ये f 0 हर्ट्ज है, सो हमारे पास xc क्या आएगा, हमारे पास xc इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। वेयरएज अगर f is going to be a large number, let's just I don't know कुछ भी हो, let's just say 2 gigahertz, so हमारे पास xc जो है वो एक स्मॉल नंबर आएगा। और xc क्या है, ये हमारे पास इम्पीडेंस है कैपेसिटर की। सो यहाँ पे देखिएगा कि 0 हर्ट्ज मतलब क्या है, ये सिग्नल डीसी सिग्नल है और हमारे पास जो डीसी लेवल था वो इस वक्त जो भी डीसी लेवल है, लेट्स से यहाँ पे डीसी लेवल 0 हुआ है या जो भी डीसी लेवल आ रहा है सर्किट इसका सिग्नल का, वो आगे से थ्रू नहीं होगा बिकॉज उस डीसी को कैपेसिटर ऐसे फील होगा जैसे इसकी इम्पीडेंस इन्फिनिटी है। यानी कि डीसी को यहाँ पे कैपेसिटर जो नज़र आएगा वो ऐसा फील, यहाँ पे काफ़ी गंद हो गया है, लेट मी जस्ट क्लियर दिस अ बिट। सो यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया था and then we have the loop antenna. So जब DC सिग्नल इसका आएगा एंटेना जो वेव है उसका, वो फर्स्ट थिंग इट विल सी इज अ कैपेसिटर। वो जो DC सिग्नल है उसको कैपेसिटर की इम्पीडेंस इन्फिनिटी नज़र आएगी, मतलब उसको ये नज़र आएगा कि आगे सर्किट ओपन है तो DC सिग्नल आगे से थ्रू नहीं होगा। वेयरएज जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उसको इम्पीडेंस एक रीज़नेबल नज़र आएगी, इन्फिनिटी नज़र नहीं आएगी। सो हमारे पास जो AC सिग्नल है वो इसके अंदर से थ्रू हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ कि जो DC लेवल है जो हमने यहाँ पे जनरेट किया था V0 यूजिंग VDD एंड वोल्टेज डिवाइडर, वो DC सिग्नल और जो DC सिग्नल यहाँ से आ रहा है ये दोनों सेपरेट रहेंगे। ये वाला इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और ये वाला इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जो हमने कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया था इस सर्किट में, ये क्या कर रहा था, ये इस साइड और इस साइड के डीसी लेवल्स को आपस में सेपरेट रख रहा था, इनको आपस में डीसी लेवल्स को मिक्स नहीं होने दे रहा था, जबकि एसी सिग्नल्स जितने भी यहाँ से आ रहे हैं वो थ्रू हो रहे थे इसके अंदर से। इस कैपेसिटर की एक और एप्लीकेशन ये है कि लेट्स से आपने 2 एम्पलीफायर्स यूज़ किए हैं इन सीरीज़ एंड यू वांट टू समहाउ, चाहते हैं कि इसकी जो आउटपुट है मैं दोबारा एम्पलीफाई कर लूँ यूजिंग अनदर एम्पलीफायर स्टेज। तो वी नीड टू कनेक्ट दीज टू दिस आउटपुट विद द इनपुट ऑफ दिस एम्पलीफायर। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो डीसी लेवल है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू यहाँ पर डीसी लेवल है। वेल इट कुड बी सेम बट यू नेवर नो, मीन दे कुड बी डिफरेंट एज वेल। सो अब क्या किया जाए कि जो हमारा सिग्नल है, मैंने से सिग्नल आई मीन AC सिग्नल, वो तो यहाँ से थ्रू हो जाए इसके अंदर, लेकिन ये जो DC लेवल है इस सर्किट का वो इसके DC लेवल को डिस्टर्ब ना करे। उसका केन हल यही है कि हम इन दोनों के दरमियान में एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करा दें। तो होगा क्या कि जो यहाँ पर DC लेवल है वो और जो यहाँ पर DC लेवल है वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, कभी भी चेंज ये उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जबकि जो यहाँ पर सिग्नल था, जो AC सिग्नल था, वो यहाँ से थ्रू हो जाएगा इनटू द इनपुट साइड। इस कैपेसिटर के लिए हमारे पास एक नाम भी है एंड दैट इज बाईपास कैपेसिटर। सो हमने जो यहाँ पर ऊपर कैपेसिटर लगाया था इसका नाम भी बाईपास कैपेसिटर ही है।